लगभग 300 से 400 शिकारी थे। उनका हथियार हमको दिखाने लगे, तीर दिखाने लगे। एक को तो तीर चला दिए थे। कि इतना घना जंगल देखा भी नहीं था। तभी एक दिन था, बहुत मेरे को बहुत दुख लगा था। टाइगर पंछी शब्द करे। मेरा नाम राम राय हो। फॉरेस्ट गार्ड के रूप में मैं सिमरीपाल में 14 साल से काम कर रहा हूँ। Ram Rai is part of the frontline force watching over the jungles of Simlipal, Asia's second largest biosphere reserve, situated in the eastern state of Odisha. This biosphere reserve is a popular wildlife tourism spot. But what lies behind the tourist eye is a dense jungle, and these camps in the middle of nowhere, manned by forest officers. Root got exclusive access to go inside some of the camps in the core area of the forests, where the public are not allowed, to meet these first line of defenders who not only face attacks from wild animals but also armed poachers. Additionally, we had to get this film approved by the Odisha Forest Department. The forest guards usually have 4 to 5 protection assistants who are recruited from the local communities on a temporary wage basis. Brute had permission to accompany the forest guards on one of their patrolling rounds. While on patrolling, the troop suddenly hid behind the bushes and we were instructed to take cover as well. Python, PP, Python. Python, PP, Python. Later, they told us that it was a mock drill to demonstrate how they protect themselves in the jungle against approaching poachers. तो सामने से कोई आ रहा है, शिकारी या कोई भी हो, तो इसलिए हमको पहले छुप जाना है, नहीं तो वो देख लेंगे तो भाग जाएंगे ना, सामने आएंगे नहीं। तो इसको पकड़ने के लिए हम पहले छुप जाते हैं और उसके बाद मैसेज करते हैं। जो बीट ऑफिस है या रेंज ऑफिस जो नज़दीक में है, इसको हम मैसेज देते हैं, फिर वहाँ से ज़्यादा स्टाफ आए और उसको हम पकड़ सके। हम पेट्रोलिंग में गए थे, हम पता चला कि शिकारी है यहाँ पे, बाराकामड़ा रेंज का है। लगभग 300 से 400 शिकारी थे और हमारे बीच में स्टाफ, रेंज ऑफिसर, फॉरेस्टर, गार्ड्स, पीए होके लगभग 100 जैसे थे। और हमारे साथ जो भी वेपन था, लाठी फाड़ी, वो इन्होंने सब ले गए। उनका हथियार हमको दिखाने लगे, तीर दिखाने लगे। एक को तो तीर चला दिए थे। While there is no official data maintained on the deaths of forest staff on duty, India was ranked the deadliest country in the world for forest rangers by International Ranger Federation. Forest rangers are a rank above forest guards. There has been a debate over whether forest guards in India should be armed. While the Supreme Court in 2021 had asked state governments to better equip forest officers to fight poachers, a set of experts believe that arming forest guards could run the risk of arbitrary use on local villagers. अगर वेपन या कुछ हथियार के साथ अगर अटैक करते हैं हमको, तो हम लाचार हैं। Not just illegal poaching.
forest guards also have to fight deadly forest fires. In 2021, news of raging wildfires in the Simlipal forest hit the national headlines, although government officials say it was a yearly occurrence in the area. While the fire was ravaging several parts of the forest, a video of a dancing forest guard went viral. We met her at a forest camp in Simlipal with her 6-year-old daughter. तभी फायर का सीजन था, बहुत दिन से मेरा परेशान था कि आग लग रही है, जंगल फूट जा रही है, तो को एक दिन भी बारिश हो जाएगा तो कुछ रिलैक्स मिल जाएगा। वो पहला दिन था, बारिश हुआ तो तभी मेरा जो 4 ग्रिड है वो ज़्यादा जल्दी से लिप गया, मतलब बुझ गया। तभी मेरे एक स्टाफ ने मेरे वीडियो मेरे कटिंग कर लिया। मैं तभी मैं इतना खुश होकर नाच रहा था, मेरे को भी पता नहीं था कि वो वीडियो कर रहा है। Environmental experts, media reports, and even the forest department pin the blame of the wildfires on multiple factors, including activities of local communities near the jungle. Forest officials also say they hold awareness meets before the fire season and sometimes engage the tribal communities in firefighting. এখানে আগুন ধরে এখানে লাগিয়ে যাচ্ছে, ও সাইডের কিছু দূরের পাথরকে সাইড করে দিলে আগুনটা अभी 2 साल में हमने जब फायर के टाइम पे मीटिंग किए थे सब लोग को बुलाकर, तभी जब मैंने बोला कि तुम आओ और काम, वो लोग बोले कि तुम तो पहले नहीं आए, अभी आग के टाइम क्यों आए हो। Back after the day's duty, the forest staff have to cope with water woes, mosquitoes, and isolation. एलिफेंट गोटे डायरेक्ट साइटिंग अच्छी नोट करूँ रिपोर्ट करेंगे पाइथन को। घंटे के घंटे जो VHF मैसेज कम्युनिकेट होता है उसी से हम बात करते हैं बस, और किसी से बात करने का मतलब मौका ही नहीं है। तो इसीलिए कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारा जो ड्यूटी है ना, ड्यूटी तो हमको निभाना पड़ेगा। तो जब मेरे बच्ची पेट में था तभी मेरे को बुखार बहुत आया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया भी हो गया। वाटर का ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था, जो नाली का पानी हमको बॉयल करके वो ही पीते थे, इसीलिए शायद मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। पर साल एक बार तो मलेरिया होता था। ये कौन है? नाम बताओ अपना। पापा का तबीयत बहुत ख़राब था, हाँ, तभी मैंने फ़ोन पे वहाँ पे नहीं था, तो उनके साथ बात करने के लिए मेरे को 12-13 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। तभी मेरे को पता नहीं था कि उनका तबीयत इतना भी ख़राब था कि तभी जब मैसेज दिया रात हो गया था, तभी बातचीत करने के लिए मैं नहीं आ सका। 2 दिन के बाद आया तो फिर बहुत सीरियस हो गए थे। तभी एक दिन था, बहुत मेरे को बहुत दुख लगा था और कुछ रिस्क तो होता ही है। देखिए कभी कभी जंगल में रात भी गश्ती करना पड़ता है, और रात की गश्ती के दौरान कभी कभी मतलब हाथी जैसे बड़ा जानवर के साथ भी आमना सामना हो जाता है। ट्रेनिंग कुछ और होता है और फील्ड में कुछ और होता है। और डिपार्टमेंट भी है जो कि हमारी तरह ही है, वो इसको हमसे ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है, क्योंकि हम अगर जंगल में रह के भी इतना करने के बाद भी अगर हमको इतने ही मिल रहा है तो हमको बिल्कुल कम ही लगेगा।
एक एक जगह होता है जो फ़ोन पॉइंट होता है, कहाँ कहाँ जंगल के बीच में। कभी कभी गश्ती के दौरान उस जगह हम पहुंच जाते हैं, तो फिर फ़ोन में ट्राई करते हैं, 5-10 मिनट बात करते हैं, फिर चल पड़ते हैं। तो हम यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि फैमिली तो पास है नहीं। वो जो 2-4 आदमी हैं, यही हमारा फैमिली है। सिंगे कागे हासूरो निदे कागे आगो आमा उड़ूते आमा उड़ूते आमा उड़ूते आमा उड़ूते।